एक चीज जो मैंने आपको बताई है, ये चीज उन सबके मन में खटकता रहता है कि यार इस देश में आखिर है क्या, भारत में ऐसा है क्या भारत में कि इसको 800 साल तक रौंदा गया भाई। इसकी संस्कृति ऐसी है कि खत्म ही नहीं होती। दैट क्वेश्चन, हाउ डू यू जज हु इज राइट और रॉन्ग? सो यू सी दैट एनीबडी एंड एवरीबडी इज ट्राइंग टू टेल यू समथिंग, सी दैट is he trying to strengthen my roots or is he trying to weaken my roots? If he is trying to strengthen my roots, then he is right. If he is trying to weaken my roots, then he is damn wrong. ये ना मैं कभी कभी सोचता हूं ये फ्रीडम शब्द कब पैदा हुआ होगा। वंदे मातरम, namaskar to everyone, all those who are listening, my seniors, juniors, and most importantly, all those wonderful young people sitting all across the country and listening to me. NCC, let me tell you what leadership is. You know, before I left the army, in the last few years before I left the army, a young officer who had just passed out from the academy about a couple of months back, he came and told me in a very casual discussion as to, sir, what do you think is leadership? And I told him one thing. Okay, look, what happened is that there was a government order gazette issued by the government of India based on which a pipping ceremony was held and you passed out as a lieutenant with the stars on your shoulders. And after that, there will be similar orders and pipping ceremonies that will continue to happen. It will make you captains, majors, lieutenant colonels, brigadiers, and beyond. There'll also be orders giving you position of responsibilities like platoon commanders, company commanders, commanding officers, brigade commanders, and whatever it is beyond. But let me tell you, young man, there can be no orders, no ceremonies from anywhere in this country, even the President of India, which can appoint you as a leader. Because that appointment, that you are a leader, will have to come from your subordinates. They will have to come one day, accept you as a leader, and consider you worthy of being a man who can be followed straight into the fire of death and hell. And that is one, you can only be a leader. Leadership नीचे से आएगी. आपका जवान जब नीचे से देखेगा, आपको देखेगा और सम्मान करेगा, ये है वो साहब जिसका पीछा करते हुए मैं मौत के मुंह में जाने को तैयार हूं, तब आप लीडर है. उसके पहले आप लीडर नहीं है. तो जब ये बात है, अगर ये लीडरशिप है, दिस इज लीडरशिप, व्हाट इज रिक्वायर्ड? द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ ए लीडरशिप दैट इज रिक्वायर्ड इज कैरेक्टर, द स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर, द स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर, नथिंग एल्स. I'm telling you, please remember all those young boys and girls who are listening to me, that this is the most important virtue, because the outside world, there's a bit of confusion about it. You know, in the outside world, they are focusing a lot today on personality. You know, but इस देश में, भारत में, जो हमारी पुरातन परंपरा थी, उसमें चरित्र पर जोर दिया जाता था. It was character first and only character. इस देश में व्यक्तित्व निर्माण की आप कोई भी शास्त्र उठा के देख लीजिए, कहीं कोई बात नहीं, कहीं नहीं है, सिर्फ चरित्र की बात होती थी. ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, ह्यूमिलिटी, रिस्पेक्ट, यू नो, करेज, फियरलेसनेस, दीज वर द वर्च्यूज दैट वर फोकस्ड अपॉन. आज कहीं देखेंगे, you know, and all these things have come, these pollutants which have come from the Western, from the Western civilization, that it has come, that we started focusing on personality and things like that, and we started undermining the values of being a character. And for a short run, growth हो भी जाता है कभी कभी, you know, personality का लेके you can grow also at times. But character is what? Character is the real thing. It's, if you take a product, then character is the product. Personality is the packaging. So packaging में हो सकता है आप एक दो चीज चला लेंगे, but if your product is faulty, there somewhere you will be discovered that this man inside is hollow. ऊपर से सिर्फ packaging है, he looks smart, he talks smart, he can speak well, he can write well, but चरित्र के हिसाब से इस व्यक्ति में दोष है, खोट है. वो कभी ना कभी खुल जाएगा आपका. आर्मी में तो 2 मिनट में खुल जाता है, बाहर थोड़ा समय लगता है, लेकिन देर सवेर खुलता ही खुलता है. तो इस भ्रम में कोई ना रहे कि किसी भी प्रकार से व्यक्तित्व निर्माण करके आप चले जाएंगे. यस, इफ वी हैव अ फैंटास्टिक प्रोडक्ट, देन द पैकेजिंग शुड बी गुड. तो if you character, we build it, then yes, please go ahead and build your personality, but without character, no question about it. You know, आजकल whenever you say someone, किसी के बारे में जांचना होता है, for example, in simple say कि
अपने बच्चों के लिए हम जब देखते हैं, रिश्ता देखते हैं, लड़का लड़की देखते हैं, तो एक सवाल पूछते हैं, कोई पूछते हैं ये रिश्ता आया है, तो बोलते हैं क्या एजुकेशन है। इस देश की मूल संस्कृति के हिसाब से जब भी ऐसा कोई संबंध आता था या किसी के बारे में जानना होता था, तो प्रश्न आता था कि उस लड़के के संस्कार कैसे हैं, उस लड़की के संस्कार कैसे हैं, उस परिवार के संस्कार कैसे हैं, उस लोगों के संस्कार कैसे हैं, जिस समाज से वो लड़का या लड़की आता है उस समाज के संस्कार कैसे हैं। और संस्कार का मतलब चरित्र होता है। उस चरित्र के जो गुण हैं उसमें सब एक बहुत इंपॉर्टेंट गुण है डिसिप्लिन का, अनुशासन का। और अनुशासन के बारे में एक बात कहूंगा मैं ना, डिसिप्लिन के बारे में, मोमेंट वी कॉल इट डिसिप्लिन एंड स्पेशली व्हेन इट कम्स फ्रॉम समवन लाइक मी हु हैज बीन फ्रॉम आर्मी, इट इज एक इंप्रेशन होता है कि फौजी जब डिसिप्लिन के बारे में बात करेगा तो इट्स गोइंग टू बी समथिंग डिफिकल्ट, ही इज गोइंग टू मेक आवर लाइव्स, यू नो, जो हमें ये जीवन जीने का जो तरीका बताने वाला है ये फौजी, ये थोड़ा सा मुश्किल टाइप है, ये एक ऐसा इंप्रेशन होता है। प्लीज लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज जितने भी लोग आप सुन रहे हैं, डिसिप्लिन इज द इजीएस्ट वे टू लिव योर लाइफ, इट इज नॉट डिफिकल्ट, indisciplined way is the more difficult way of living your life. If you don't believe it, then please go ahead and take your car or walk into a road on which the traffic is not disciplined, and then again go into a traffic which is running disciplined manner. The journey on that road becomes so smooth, so simple, it is so enjoyable. But the moment you go to a place where the traffic is not disciplined, disorganized, and you see how hell your journey becomes, you know, even to cross a kilometer you feel कि कहां फंस गए यार। तो अगर आपने अपने जीवन में अनुशासन का पालन नहीं किया तो आपको हर पल यही महसूस होने वाला है कि कहां फंस गए यार इस जिंदगी में। एक दिन काटना मुश्किल हो रहा है, एक घंटा काटना मुश्किल हो रहा है। जिस संगठन में आप जाएंगे अगर वहां अनुशासन नहीं है तो आपको लगेगा कि किस संगठन में आ गए हम यार, यहां पर कितना मुश्किल है। और अगर अनुशासन है तो सब कुछ सही है। और अनुशासन है क्या? अगर अनुशासन क्या है? अनुशासन ब्रह्मांड का नियम है। इट इज द कॉस्मिक लॉ, दैट इज व्हाट इज डिसिप्लिन। द एंटायर यूनिवर्स इज डिसिप्लिन, मैडम इट, द एंटायर यूनिवर्स वर्क्स ऑन डिसिप्लिन। द यूथ आपके सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है। I understand, you know, at times I am scared to be at your place. I am very happy that I spent my youth in the times that I spent. The challenge that you have today is far more bigger. Why I am telling you कि आज आपको भ्रमित करने का बहुत ज्यादा प्रयास किया जा रहा है। हमारे समय में इतना कोई कंफ्यूज हमें कर नहीं रहा था। आज हर व्यक्ति आपको भ्रमित करने का प्रयास कर रहा है। सभी के अपने अपने स्वार्थ हैं, अपने अपने एजेंडे हैं। एंड यू एट टाइम्स, आई ऑलवेज वंडर एट टाइम्स कि वो जो आज का युवा है वो सोचता होगा क्या सही है क्या गलत है। इतने सारे लोग इतनी सारी चीजें बोल रहे हैं, ये जरूरी है वो जरूरी है, पता नहीं क्या सही है। लेट मी मेक इट वेरी क्लियर लेडीज एंड जेंटलमैन, कुछ नया नहीं हुआ है। आजकल एक चलता है ना, इन टुडेज वर्ल्ड दिस इज द न्यू, you know, thought process, this is the modern way of thinking. There is no damn it modern way of thinking. It's the same way of thinking which was applicable 1000 years back. The same way of thinking is applicable even today. Like this is the ये पेन का एक ढक्कन है, when I leave it it comes down, man. Every time I pick it up, leave it comes down. What I'm trying to see is that is the gravitational force not working on this? That is the law of gravity which was working thousands and lakhs of years back and will continue to work thousands or lakhs of years ahead. There's nothing that has changed. The day this gravitational force change, then you can think, okay, that means दुनिया में कुछ principles बदले हैं. Let me think what has changed. Otherwise, as long as the gravitational force keeps working the way it was working, there's nothing in this world that has changed. ईमानदारी का, सच्चाई का, चरित्रों के जो मूल्यों की बात आज से पहले थी वो अभी भी है, आगे भी रहेगी। कष्ट क्या है कि आज बाजार हो गया है, सोच का बाजार हो गया है। हर व्यक्ति जो सोच निर्माण करने का धंधा करना शुरू कर दिया है। मैं सबकी बात नहीं करूंगा, लेकिन कुछ लोग कर रहे हैं। अब वो करे के व्यक्ति, रोज एक नए न्यूज चैनल में नई बात बोलनी है उसको, हर पिक्चर में नई पिक्चर दिखानी है। पहली पिक्चर इस देश में बनी थी राजा हरिश्चंद्र, वो दोबारा बनाएगा तो चलेगी नहीं ना। कुछ नया दिखाना है कि कुछ नया लाओ, कुछ नया लाओ। पिछली बार जो पहले सीरियल चलते थे वो अब नहीं चलेंगे, जो पहले किताबें लिखी जाती थी वो अब नहीं लिखी चलेंगी। आज मैं आपसे बात कर रहा हूं, आप मुझे फिर परसों बुलाएंगे, मैं सोचूंगा अब क्या बोलूं। 10 तारीख को तो मैंने बोल दिया जो दिल की बात बोलनी थी, तो मैं कल्पना करने लगूंगा कि अब कुछ नया फंडा सोच के आऊं।
और आप मेरी बात सुनेंगे, सबकी बात सुनेंगे और सोचेंगे पता नहीं क्या सही है क्या गलत है, इतनी सारी चीजें लोग बोल रहे हैं। नथिंग हैज चेंज, बस वही मूल्य है जो हजारों साल पहले थे। सच्चाई का, ईमानदारी का, वफादारी का, रिश्तों का, संबंधों का, सम्मान देने का, सम्मान लेने का, विनम्रता का, साहस का, वही मूल्य है, वही है, कुछ नहीं बदला है। प्लीज डोंट। इज दैट आजकल बहुत सारे लोग आपको भड़काएंगे, फ्रीडम इज योर राइट, आजादी, आजादी, फ्रीडम रखो, फ्रीडम रखो, फ्रीडम रखो। यू नो व्हाई दे वांट यू टू टेल यू दैट फ्रीडम? Why everybody today, a lot of people is trying to tell the youth freedom? Because if they know, वो फ्रीडम किससे चाहते हैं? वो फ्रीडम इसलिए चाहते हैं कि आप पुराने मूल्यों से अलग हो जाएं, अपने माता पिता, अपने जो शिक्षक हैं, जो आपका भला चाहते हैं, आप उनसे आजाद हो जाएं, उनसे फ्री हो जाएं। क्योंकि जब आप उनसे फ्री हो जाएंगे तो वो आपको कब्जा करना चाहता है, वो आपको अपना गुलाम बनाना चाहता है। तो ये नहीं कह रहा है, वो अगर ये कहेगा कोई भी आकर बाजार में या कहीं भी कि आप मेरे गुलाम बन जाओ, तो आप तो बनेंगे नहीं। तो वो क्या कहेगा? आप आजादी ढूंढो, ये क्या पुरानी चीजों में पड़े हो, आप उससे आजाद हो जाओ, व्हेन यू आर फ्री। और वो धीरे से फिर वो आपको अपना गुलाम बनाएगा, क्योंकि पूरी दुनिया आपको भ्रमित कर रही है। पूरी दुनिया बाजार बन चुकी है, सोच का बाजार है, वस्तुओं का बाजार है, खबरों का बाजार है, आइडियोलॉजी का बाजार है। ये आप घाट बांध के रख लीजिए। ये ना, मैं कभी कभी सोचता हूं ये फ्रीडम शब्द कब पैदा हुआ होगा? कहां से आया ये फ्रीडम शब्द? जब मनुष्य ने, व्हेन मैन वाज इन्वेंटिंग लैंग्वेजेस, पहली बार जब भाषा का निर्माण कर रहा होगा, तो भाषा क्यों निर्माण किया होगा उसने? कोई वस्तु होगी, कोई परिस्थिति होगी जिसको वो शब्द देना चाहता होगा कि ये पत्थर है, तो इसको हम सब लोग रोज ऐसे ऐसे कहते हैं, लेट अस गिव इट अ नेम, तो हम इसको स्टोन कहेंगे, पत्थर कहेंगे। तो ये हरी सी चीज है, इसमें कुछ है, तो लेट अस गिव इट अ नेम, हम इसको पेड़ कहेंगे, विल कॉल इट अ ट्री एंड व्हाटएवर इज द लैंग्वेज, जो भी शब्द है। तो ऐसे ही चीजें आती गई होंगी, परिस्थितियां आती गई होंगी। तो उन्होंने कहा इस परिस्थिति को क्या कहा जाए? तो उन्होंने कहा इस परिस्थिति को कुछ नाम देते हैं। तो एक बात बताइए, उस समय फ्रीडम, आजादी, स्वतंत्रता शब्द को कॉइन करने की कब आवश्यकता पड़ी होगी? या पुराने जमाने की बात छोड़िए, आज जंगल में चले जाएं, जो चिड़ियाएं उड़ रही हैं, अगर उनकी कोई भाषा वो बनाना चाहें, या हो सकता हो कोई भाषा, उस भाषा में क्या वो कोई फ्रीडम शब्द होगा उनके पास? आजादी शब्द होगा? दे आर ऑलरेडी फ्री, व्हाई शुड यू? आई विल टेल यू व्हेन ये आजादी की जरूरत पड़ी होगी उनको। ये जो स्वच्छंद उड़ने वाली चिड़ियाएं हैं, स्पेशली द वंस हु स्वॉन्स, जो एक साथ झुंड में, फ्लॉक में उड़ती हैं, कहीं भी जा रही हैं, एक साथ ऐसे ऐसे उड़ रही हैं, घूम रही हैं, हम देखते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है। लेकिन उसमें से यदि कोई चिड़िया को कोई सयाद पकड़ के पिंजरे में बंद कर ले, तब उन पक्षियों को लगेगा, या वो चिड़िया जो बंद हो गई है, कि मुझे इससे बाहर निकलना है, और इस यहां से बाहर निकलने की परिस्थिति जो है, द सिचुएशन दैट आई वांट टू गो आउट ऑफ दिस केज इज कॉल्ड एज फ्रीडम। तो जब तक कोई आपको कैद नहीं कर रहा है, जबरदस्ती यूं ही फ्रीडम फ्रीडम फ्रीडम, अगर चिड़ियाएं जो आकाश में वैसे ही उड़ रही हैं, एंड दे कीप शाउटिंग, आई वांट फ्रीडम, आई वांट फ्रीडम, व्हाट फ्रीडम? यू ऑलरेडी फ्री। और कौन सी फ्रीडम चाहिए? बट हां, उस फ्लॉक में उड़ने वाली जो चिड़ियाएं हैं बहुत सारी, वो एक साथ उड़ रही हैं, उनके अपने नियम है उन पक्षियों के समाज का, कौन आगे कौन कैसे। जैसे माइग्रेटरी बर्ड रहती हैं, साइबेरिया से लेकर यहां तक चली आती हैं, कैसे चली आती हैं एक साथ? उनका एक समाज का, उन पक्षियों का जो समूह है, उनका एक नियम है, कौन आगे रहेगा, कौन रहेगा, फॉर्मेशन कैसे होगा इन चिड़ियाओं का, कौन किस प्रकार से पंख फहराएगा, वो नियम है। उस नियम के अंतर्गत सब चलते हैं, तभी वो वहां से लेके यहां तक एक बार में पहुंच जाते हैं। कौन नेतृत्व करेगा, कौन नहीं करेगा, सब उसका पालन करते हैं। अब उसमें से कोई चिड़िया अगर उसको गुलामी समझने लगे, तो ये भूल है, तब ये भूल है। वो कहे कि मैं ऐसे क्यों उड़ूं, मैं तुम्हारी बात क्यों सुनूं, और जस्ट फॉर द सेक ऑफ चेंज, पिछले पता नहीं 100 सालों से वो चिड़ियां उसी तरीके से उड़ रही हैं। दे आर नॉट फीलिंग द नीड टू चेंज दैट पैटर्न इन द वे दे फ्लाई, दे मेक दोस फ्लॉक्स, दे आर नॉट फीलिंग एनी नीड। हमें, या वी आर ह्यूमंस, वी कैन थिंक, बट जस्ट बिकॉज गॉड हैज गिवन अस द पावर ऑफ थिंकिंग, should we start changing? And if we were those flock of birds, simply because उन चिड़ियाओं को मान लीजिए मनुष्य की तरह से अगर बुद्धि आ जाए, should they start changing in the way they fly?
You know, the basic principles have to be remain same. If they start changing the way, the Siberia से यहां तक नहीं पहुंच पाएंगे, 50 किलोमीटर में गिर जाएंगे सारे वो पक्षी. So that is what I'm talking of. Just because someone wants to break you out of it, because वो आपको अपने झुंड का गुलाम बनाना चाहता है, तो वो देखता है आप वहां फॉलो कर रहे हो, वहां से निकलो मेरे पास आओ, तो वो पहले आपके अंदर विद्रोह की भावना जगाएगा और उस विद्रोह को नाम देगा भ्रमित करने के लिए कि आप आजाद हो जाइए. दिस इज योर राइट, दिस इज योर फ्रीडम. हर बात में फ्रीडम. बच्चों का माँ बाप से फ्रीडम, हस्बैंड का वाइफ से फ्रीडम, वाइफ का हस्बैंड से फ्रीडम. कोई ऑर्गेनाइजेशन है तो वहां कोई पहुंच जाएगा, नीचे वालों को बोलेगा ऊपर से फ्रीडम, ऊपर वालों को नीचे वाले से फ्रीडम. हर व्यक्ति खंड खंड होने लगेगा, टूटने लगेगा, अलग अलग होने लगेगा. तो संभव नहीं है ना भाई. समाज नहीं चलेगा, देश नहीं चलेगा, परिवार नहीं चलेगा. वी ऑलरेडी पेइंग द प्राइस. वी हैव डिसइंटीग्रेटेड एज first we began disintegrating as a family. Earlier there used to be joint families, now the nuclear families. अब न्यूक्लियर में भी अलग अलग हो रहा है. एक परिवार में सिर्फ हस्बैंड वाइफ बच्चे रहते हैं. Everybody wants a separate room because they can't live in one room. Everybody wants freedom. आइडेंटिटी की बात करूंगा मैं. व्हाट इज योर पहचान भी है. देयर इज अनदर डिबेट दैट इज गोइंग ऑन. मेक योर ओन आइडेंटिटी. अपनी पहचान बनाइए, निर्माण कीजिए. अगेन ये सब शब्दों का छलावा है आपको बहकाने के लिए. मेक योर ओन आइडेंटिटी. व्हाट इज योर आइडेंटिटी टुडे? इफ समवन आस्क यू, नहीं अपनी पहचान बनानी है. पहचान अभी नहीं है क्या आपकी? अगर आज आपकी पहचान नहीं है, सॉरी देन. अगर आप आज समझते हैं कि आपकी पहचान नहीं है, तो आप जड़ों से कटे हुए हैं. इसका मतलब है कि आपको अपना पता नहीं है. There was only once in my entire life when I stood up to speak, I was confused as to what to speak. There was only once it happened. I went to an orphanage. But when I went to an orphanage and the people introduced us and all, they told me कि बच्चे हैं, इनका पता नहीं है, किसी को हम कचरे के पेटी से उठा के लाए हैं, किसी को हम कहीं से उठा के लाए हैं, किसी को पिता का नाम पता नहीं, माँ का नाम पता नहीं, कोई मंदिर में छोड़ के चला गया था तो हम उठा के लेके आए हैं, कोई कहीं से, कोई कहीं से, कोई कहीं से. उनका तो दुर्भाग्य था कि उनको पता नहीं था वो कहां से आते हैं, उनके जड़ें नहीं पता थी. बट इफ purposely, if someone is trying to do so, trying to build a society which is going to be cut off from the roots, that the question that I'm asking to all such people is that कौन सी पहचान बनाएंगे अगर आपको अपना इतिहास का पता नहीं है कि कहां से आप आते हैं, किस गौरवशाली वंश से आप आते हैं. आपको जब यही पता नहीं है तो उन अनाथ बच्चों में और आप में क्या फर्क रहेगा? तो सबसे पहले आप फ्यूचर में, आई एम ट्राइंग टू मेक माई आइडेंटिटी. बिफोर यू डू दैट, आई urge every one of you to please go back and first find your identity from behind. Connect to that identity, get rooted to that identity, and then you and try and do whatever you rise. If you want to rise high, again come back to the law of nature. ऊंचा पेड़ वही जाता है जिसकी जड़ें नीचे होती हैं. Go and give me a tree which is very, very high and which has got no roots at all, or a root which is just about 1 inch deep into the soil. घास की जो जड़ होती है, हो सकता है 1 इंच हो, तो फिर आप घास ही बन पाएंगे. जितनी ज्यादा आप जड़ों से जुड़ेंगे, उतना ही आप ऊपर जा पाएंगे. और अब जीवन में क्या है कि आप जो है ना, जितने युवा हैं इस समय, आप लोग यू आर ए पावर हाउस. सो अब इस पावर हाउस में क्या है कि सामर्थ्य आप में शक्ति है. एंड पूरी दुनिया जितनी है वो they're trying to, they want, I told you, there are a lot of people, lot of organizations, lot of agendas. Everybody wants, everybody wants to succeed. Everybody wants power, and there's no better power than the youth that we have today. So everybody will pull you towards that. सब आपको अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेंगे that you come. आपके लिए सबसे बड़ी चुनौती है, the biggest, most difficult task that in front of you, of all the youth, is that how do you find out who is right and who is wrong? भ्रमित हो जाएंगे आप, बिल्कुल भ्रमित हो जाएंगे. सबसे बड़ी चुनौती है आपके सामने, क्योंकि let's accept fact, a lot of you have actually, disconnected yourself from your parentage and elders. आज कई पेरेंट्स की मैं वो स्थिति देखता हूं जो बोलते हैं कि अब बच्चों को क्या बोले, और उसको एक शब्दों का जामा पहना देते हैं. when I say
जाते हैं तो बोलते हैं कि आजकल के बच्चे तो सब जानते हैं, कुछ बताने की जरूरत ही नहीं। कम ऑन यार सब जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं है। आज से ज्यादा भ्रमित मैंने कोई युवा पीढ़ी नहीं देखी। और एक हम भी पेरेंट्स, एज ए पेरेंट्स, अपनी जिम्मेदारी से भागने के लिए बोलते हैं ना, दे डोंट नीड टू बी टोल्ड, टुडेस जनरेशन नोज एवरीथिंग। व्हाट डू यू नो यार? डोंट बी अंडर इल्यूजन। दैट इज बिकॉज समवन, एज आई टोल्ड यू ना, किसी ने वो डाल दिया है कि आपके अपने माता पिता से आपको आजाद कर लें, जिससे कि वो आपको नचा सके, और वो सफल हो गया है। और पेरेंट्स हैव गिवन अप, पेरेंट्स हैव गिवन अप कि बच्चे सब जानते हैं, कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। राइट? तो आपको जब भ्रमित करने की कोशिश करेंगे, लोगों के राजनीतिक एजेंडे होंगे, आस्थाओं के एजेंडे होंगे, और बहुत सारी चीजें होंगी, और इसमें आप कैसे पता करेंगे कि सही क्या है गलत क्या है? तो उसका आप मापदंड मान लीजिए। उससे पहले एक और बात मैं बताना चाहूंगा। आई एम नॉट कमिंग प्रिपेयर्ड, आई एम स्पीकिंग एज इट कम्स टू माय माइंड। पूरी दुनिया में जितने भी बुद्धिजीवी लोग हैं ना, तो ऑल दोस ग्रेट माइंड्स सब हर जगह हैं, हर देश में है, चाहे वो देश हमारे मित्र हो या शत्रु हो, जो भी हो, हर जगह पर कोई ना कोई वो एक श्रूड माइंड तो होता ही है पर्दे के पीछे। एक चीज जो मैंने आपको बताई है, ये चीज उन सबके मन में खटकता रहता है कि यार इस देश में आखिर है क्या? भारत में ऐसा है क्या भारत में कि इसको 800 साल तक रौंदा गया? भाई, इसकी संस्कृति ऐसी है कि खत्म ही नहीं होती। है क्या भारत? बाकी देशों में इतिहास जितना पढ़ लिया, 25 साल, 30 साल, 35 साल, कहीं कहीं तो 10 दिन खत्म हो जाती पुरानी संस्कृति। वो बोलते हैं कि है क्या ये भारत में? तो इस पर जानते हैं कि चूंकि यही एक देश है जो अपनी जड़ों से जुड़ा है। मैंने पौधे वृक्ष का उदाहरण दिया ना, जितना नीचे गहरे हैं उतना ही ऊपर जाने की संभावना है। तो ये बात वो भी जानते हैं कि सबसे ज्यादा गहरी जड़ें इसी देश की हैं। अमेरिका को तो पता ही नहीं था 400 साल पहले वो था क्या। जन्मी कुछ लोगों को तो डेट ऑफ बर्थ ही मतलब कोई 200 साल 300 साल से ज्यादा है ही नहीं किसी देश का। पाकिस्तान तो 72-73 साल पहले पैदा हुआ था। तो कोई सबसे पुराना है तो हम हैं। तो यानी कि प्रकृति के नियम से, ब्रह्मांड के नियम से, चूंकि जड़ें हमारी सबसे गहरी हैं, तो ऊंचाई पर जाने की संभावनाएं हमारी सबसे ज्यादा है। और ये सब जानते हैं, और सब जानते हैं, इसीलिए हमारे पर प्रहार करने का प्रयास किया जा रहा है। वो प्रहार से सेना का प्रहार नहीं होता है, आजकल बौद्धिक स्तर से भी बहुत ज्यादा प्रहार किया जाता है, भ्रमित करने का प्रहार किया जाता है। ये देश को उलझा दिया जाए, इसकी मानस पटल को, इसकी मानसिकता को, लोगों की सोच को उलझा के फंसा के रख दिया जाए। अदरवाइज दे नो दैट वंस दिस कंट्री क्रॉसेस द बेसिक थ्रेशहोल्ड, then there is no stopping this country. No country, no power in this universe that can stop this country from becoming a super, I won't say power, because हमारी संस्कृति में वो शब्द नहीं है। जिसने भी सपना देखा पूरी दुनिया में अपने राष्ट्र को आगे पहुंचाने का, शीर्ष पर पहुंचाने का, तो उन्होंने विश्व शक्ति बनने का सपना देखा है। भारत विश्व शक्ति नहीं, विश्व गुरु बनने का सपना देखता है, और वो इसलिए कि ये सामर्थ्य सिर्फ भारत में है। And we owe it not just to our country, but the entire world and the universe to prevent our civilization, because the way the world is confused almost on every damn thing, the answer to every question that ever existed in this universe or is existing today lies in the soil of this country. इस देश के मिट्टी में दुनिया के हर प्रश्न का, हर द्वंद्व का उत्तर छुपा है। हमारे पूर्वज जानते थे, उन्होंने लिखा था, बोला था, कुछ छूट गया कोई बात नहीं। आज भी हम दिल लगाकर बैठेंगे तो इस देश की मिट्टी इस दुनिया के सारे प्रश्नों का जवाब देने का सामर्थ्य रखती है। और उस मतलब से ये हमारा कर्तव्य बनता है कि हम अपनी इस देश की संस्कृति को, सभ्यता को सुदृढ़ करें, इसको मजबूत करें, न सिर्फ हमारे लिए, क्योंकि पूरी दुनिया में जितनी समस्याएं हैं उसका समाधान इसी मिट्टी में है। So we have to do it not just for our country, but for the entire world. Please remember that. And why I'm telling you, so from coming back to that, because everybody wants us to, and a lot of people know the potential of this country. They're scared. They're scared that there's no one else who is as deep-rooted as we are. So they're trying to cut us. And the most important thing is that because they're scared of our roots, so सबसे ज्यादा प्रहार हमारी जड़ों पर ही किया जा रहा है। यार ये जड़ें हैं, इसको काटो।
वो कोई कोई नीचे जमीन में जाकर दीमक लगाने का प्रयास कर रहा है हमारी जड़ों को, कोई चुपचाप नीचे बैठकर नीचे से जड़ों को काटने का प्रयास कर रहा है। हम ऊपर की लड़ाई हमें ज्यादा दिखती है, ऊपर से ये हमला हो रहा है, ऊपर से ये हमला हो रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा खतरनाक है वो जो इस देश को अपनी जड़ों को खोखला करने के लिए प्रयास किया जा रहा है। ये आपको ध्यान रखना है कि हम इससे ना हटें। Or again, coming back to that question, how do you judge who is right or wrong? So you see that anybody and everybody who's trying to tell you something, see that. Is he trying to strengthen my roots or is he trying to weaken my roots? If he is trying to strengthen my roots, then he is right. If he is trying to weaken my roots, then he is damn wrong. I'm trying to give you the parameters as to how do you judge what is right, what is wrong. That is one. The next is that the most important thing that you must always keep in your mind, that the most first and foremost every single time that must come in your mind is देश। राष्ट्र सर्वोपरि है, ये आपकी भावना होनी चाहिए। आपके लिए सबसे पहली प्रायोरिटी, सबसे पहली वरीयता सदैव और सदैव हमेशा भारत माता रहेगी, रहनी चाहिए, और कोई आपके पास ऑप्शन नहीं है। इंडिया फर्स्ट, India which is rooted firmly to its ground, that is the most important factor. There's no other India that is happening, right? Don't think of any India which is not rooted to the ground. ऐसा लगेगा ऊपर कुछ फल फूल को लगाने की कोशिश करेगा, ये देखो मैं लाल फल को मैं पीला कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, और आप ऊपर ध्यान देते रहेंगे, नीचे जड़े से आप कट गए, पेड़ पूरा धड़ाम गिर जाएगा, फल भी जमीन पे आ जाएगा, पेड़ भी जमीन पे आ जाएगा, तना भी जमीन पे आ जाएगा, उस पेड़ की सबसे ऊंची शाख वो भी जमीन पर आ जाएगी। So that is what is important. After your country comes always the society first. समाज उसके बाद आएगा। इसी प्रायोरिटी में रखिएगा जिस प्रायोरिटी में मैं बता रहा हूं, उसके बाद हमेशा समाज आएगा। समाज का किसमें भला है, अगर ये व्यक्ति जो कह रहा है समाज के भले की बात है तो ठीक है, और समाज के बाद आता है आपका परिवार। परिवार के लिए क्या अच्छा है वो आप सदैव सोचना है आपको। उसके बाद आप आते हैं, योर व्हाट इज गुड फॉर यू will always come last every single time without any exception. Please remember that. At times when I see people and the youth at times thinking, this is for me, this is what I want for myself, this is what I want for myself, this is what I do to myself, this is what I achieve for myself, I at times pity such people. Come on, man. Come on, ladies. Living for just yourself is a sure short way of misery. You are heading towards disaster if you are thinking like that. You have to live for someone else, something else. It can be a person, it can be a cause. Select whatever it is, it's your heart's calling. It could be anything. It could be a man, it could be a woman. Okay, ये है वो व्यक्ति जिसके लिए मैं जीना चाहता हूं, चाहता हूं, चाहती हूं। ये है वो कॉज। किसी ने जिंदगी में पकड़ लिया कि मैं पर्यावरण में पूरी जिंदगी करना चाहता हूं। फैंटास्टिक, गो अहेड। मैं सुनता रहता हूं अक्सर और मुझे बड़ा गर्व होता है और मैं बड़ा सम्मान करता हूं ऐसे लोगों का। ये एक महिला के बारे में सुना कि वो वेश्याओं के उसमें जाती है और वहां जो किडनैप बच्चियां हैं उनको निकालने में पूरा जीवन लगा दिया उसने। फैंटास्टिक, चूज ए कॉज यार। लेकिन अपने लिए when I see people thinking मेरा जिंदगी मेरा, come on man, it's a sure short way to misery. Please don't do that. That is the last and always comes last. I think now I see a lot of hands being raised. So school. Yeah. So first you talked about leadership and discipline. Mm-hmm. And actually I'm having two doubts. So how to become a great leader as well as how to deliver a powerful speech like you. Great leader is only about being a great character. That's about all. And this doesn't come from any coaching class. नहीं होगी कोई इसके लिए. To build a character, you'll have to go through the grind. आग में तपना पड़ेगा, तप कर निकल के ही आना पड़ेगा. इसके अलावा को there is no shortcut. There is no coaching class. और आजकल हर चीज का कोई coaching class देता है. So it's not that आप मेरे से प्रभावित हो गए तो if I was a businessman, I would think कि इतने सारे लोग, if they are talking good of my speech, let me start opening a coaching class tomorrow that I will coach into a good character. It can't happen. Go into the grind. Don't take any shortcuts in life. जिंदगी में जहां जो मुश्किल हो, सिद्धांत जहां सही है उस पे चलिए, शॉर्टकट मत लीजिए. And every single time try and connect to your soul.
the greatest knowledge always lies in your conscience, and if you can keep connecting to your conscience, you will not be required to connect to anyone, no one. So आप अपनी आत्मा से अगर आप कनेक्ट हो पाए, अंतरात्मा से, तो आपको वो हर चीज का जवाब देगी. And that's about all. And if you live the life of a character, it doesn't matter whether you're a great speaker or not, people will listen to you. Anybody who lives a life, good life like that, is always, people will listen to him. अब वो अच्छा बोलता है, बुरा बोलता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है. I'll give you a small example now. In 1964, when Pandit Jawaharlal Nehru died, there was always a dilemma as who's going to be the next prime minister of this country. And there were powers in this world who actually wanted to control India. I'll not get into the politics. So they actually wanted a weak leader, जिसको वो सोचे कि हम ऐसा बंदा बनाए जो कि हमारा puppet हो जाए. And they got fooled by the humble personality of a man called Lal Bahadur Shastri. 5 foot nothing, पतली सी आवाज थी, not a great orator, not a great writer, ना कोई चाल में जो बोलते हैं पॉज स्टाइल, ये सब जो हम आजकल बात करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं था. उन्होंने कहा यार इसको बना दो. ही वाज नॉट इवन द सेकंड सीनियर मोस्ट मैन इन द पार्टी एट दैट टाइम. ही वाज मे बी फोर्थ फिफ्थ सब. तो उन्होंने कहा इसको बना दो, ये कंट्रोल हो जाएगा. बट दे डिडंट नो दैट मैन हैड कैरेक्टर यार. सो व्हेन ही बिकेम in 64, he became a nation which got demoralized in 1962 after the China war. In 1 year, he transformed the entire country. And in 65, he led this country to, a great victory over Pakistan. And he gave the nation of the Jai Jawan, Jai Kisan. And so many things he did. Had he not passed off, let me tell you, India would have achieved what we are trying to achieve today 30 years before we would have been there. But the man had simply character. He was a great character. तो जस्ट बी कैरेक्टर, जस्ट अबाउट इट. बाकी आएगा, किसी को बोलना आएगा, किसी को खेलना सीखना आ जाएगा, किसी को गाना आ जाएगा, वो बात की बात है, वो ईश्वरीय देन है, राइट. बट अब चरित्र निर्माण का कोई पर्याय नहीं है. आप शायद मेरी तरह बोल पाए, मेरे से बेहतर बोल पाएंगे आप. डोंट वरी, आई वाजंट स्पीकिंग व्हेन आई एज गुड एज आई एम स्पीकिंग टुडे. नॉट दैट आई एम अ ग्रेट स्पीकर टुडे, बट जो भी था आपकी आयु में मैं नहीं करता था. तो ठीक है, अनुभव लेके आएगा आपको. अनुभव से आप गुजरिए, आग से गुजरिए, और तप कर निखरिए, सोना बनकर निखरिए, कुंदन बनकर निखरिए. जीवन में आपका कल्याण होगा. धन्यवाद. Yes, sir. Good morning, sir. Jai Hind, sir. जय हिंद, जय हिंद. Sir, I would like to ask a question. कि आजकल हम देख रहे हैं कि जो हमारे रूट्स है वो स्ट्रॉन्ग करने के लिए we have to maintain means what we can say lesser generation gap and conversation gap with our elders. But in today's generation we may see that this gap is increasing continuously. Yes. So what should we do to tackle this problem, sir? Yeah, Please please guide, go and sir. get connected back to your elders. Yeah, spend time with them, listen to them, ask them छोटी छोटी चीजें, give them rights of your life. पापा मैं जाऊं, Yes. आज जाऊं, Yes. वो मत है, वो अचानक उनको शौक लगेगा कि मेरा बेटा इतना बड़ा हो गया, पूछ रहा है मैं संडे को मूवी जाऊं. हम क्या हो गया, पागल तो नहीं हो गया है, थोड़ा सा शौक लगेगा. बट गिव हिम दिस राइट्स यार. पापा मैं ये कर लूं, आज मेरे 4 दोस्त बोल रहे हैं डिनर पे आने के लिए, कैन आई डू दैट? Actually, as a lot of our parents today's generation, they just left it. ये हम तो टोक भी नहीं सकते यार बच्चों को, तो बोलेगा इट्स माई लाइफ. तो डू कनेक्टेड टू दैट, जस्ट होल्ड हिम, कनेक्ट हिम. दे वांट टू लिसन टू यू यार. वो इंतजार कर रहे हैं, वो इंतजार कर रहे हैं कि आप आए. आप अपना अधिकार तो उनको दीजिए. आप अधिकार नहीं देंगे तो वो बोलेंगे नहीं. कल उनको कोई बात लग भी रही होगी कि मेरा बेटा शायद गलत कर रहा है, बट वो क्या होता है कि सोचते हैं यार मैं बोलूंगा ये पलट के जवाब देगा. पापा इट्स माई लाइफ यार, आपने जिन्ना था जी लिया. यू डोंट नो व्हाट इज द मॉडर्न वर्ल्ड. एज आई टोल्ड यू, देयर इज नथिंग चेंज्ड यार. ये दुनिया बेवकूफ बना रही है, कुछ नहीं बदला. जैसे कि मैंने वो ढक्कन गिरा गिरा के एग्जाम्पल दिया था ना, जब तक गुरुत्वाकर्षण वैसे ही काम करता हजार लाखों साल पहले और अभी भी वही काम कर रहा है, तो बिलीव यू मी, देयर इज नथिंग दैट हैज चेंज्ड. अब वो क्या करें, धंधा है, बहुत सारी चीजें हैं, रोज किताब छपनी है, रोज मैगजीन छपनी है, रोज लोगों ने बोलना है. कल मुझे फिर बुलाओगे तो मैं यही स्पीच कैसे रिपीट करूंगा? तो मैं सोचूंगा कुछ नया झंडा, नया फंडा लेके आता हूँ, राइट? सो आई विल इन्वेंट समथिंग न्यू, अ न्यू एजेंडा. बट एक्चुअली आई गॉट नथिंग एल्स टू स्पीक अपार्ट फ्रॉम दिस. आप मेरे को 100 बार बुला लीजिए यार, क्योंकि सच्चाई तो यही है यार. अब मैं इसको शब्दों का जामा पहना सकता हूँ, थोड़ा लैंग्वेज बदल सकता हूँ, बट आई कांट चेंज द ट्रूथ यार. दिस इज द ट्रूथ, दिस विल रिमेन द ट्रूथ, दिस वाज द ट्रूथ, दिस विल ऑलवेज रिमेन द ट्रूथ. यही ब्रह्म है, यही ब्रह्म सत्य है, और कुछ है नहीं. तो अब बहुत अच्छा लगा, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, आपके मन में जिज्ञासा जगी, मैं उससे बहुत खुश हूँ. कि प्लीज जाइए अपने पिताजी से, माताजी से मिलिए, उनसे संपर्क कीजिए, अधिकार दीजिए उनको अपने ऊपर कि पापा ये आपका अधिकार है. यू टेल मी ना व्हाट शुड आई डू, आई डोंट माइंड इवन इफ इट गोज रॉन्ग यार.
आई डोंट माइंड, आई टेल यू पर्सनल, मैं अपनी बात बताता हूँ पर्सनल, आई वाज, हमारे जमाने में क्या होता था, मेरे उम्र के सारे लोग दे विल ऑल एग्री टू मी कि अगर आपके 10th के बाद इतने नंबर आ गए कि आपको साइंस मिल रही है, तो अगर आप साइंस ना लो तो बोले पागल है क्या, साइंस मिल रही क्यों नहीं ले रहा है मेरे को साइंस अच्छा नहीं लगता था, बट मेरे इतने नंबर गलती से आ गए कि मुझे मिल रही थी, सो आई डिडंट हैव द करेज, मैं डैड टू साइंस ले लिया मैंने, आई कुड नॉट डू वेल यार, बट am I regretting it? No yaar, I'm not regretting it. I'm not regretting it yaar. I'm very proud of the fact that I went through what he told yaar. I'm very proud of this fact. Every aspect. You saw my ad, Gillette का ad देखा आपने मेरे, Yes sir. हाँ, so my dad told Yeah, I me saw that. be tough and strong, come on man. जिंदगी के जहां जहां crucial मोड़ थे, he used to be there always strong. बाकी प्यार लाड़ प्यार अपनी जगह है, बट when he saw one day, क्योंकि my father was in Air Force, I used to live in Air Force stations, तो गांव जाते थे, he used to feel that I'm not as rustic as the village boys, and he wanted me to be that. So as per the ad you saw ना, तो मेरे पीछे वो बैल दौड़ गया, तो मैं भागा दौड़ता हुआ, he caught me hold, मैंने what nonsense यार, how are you running this? You can't be this man, मारूंगा झापड़, डरेगा अगली बार तो। तो वो क्यों किया उन्होंने, क्योंकि मैंने अधिकार दे रखा था कि मेरे पिताजी आज भी अधिकार है, एट टाइम्स आई टेल यू अगेन, पर्सनल थिंग बता रहा हूं मैं कि और ये मेरी ही बात नहीं है, मेरी पीढ़ी के सभी लोगों से पूछ लेना, आज भी हम लोग अपने पिताजी के सामने उस प्रकार से मुंह नहीं खोल पाते जिस प्रकार से आप लोग खोल लेते हो। आज भी दे आर 70+, 80+, एंड वी हैव सो कॉल्ड, हम ना अफसर बन गया, ये हो गया वो हो गया, मेरे को बाहर बोलते हैं सक्सेसफुल है, ये है फलाना है, ग्रेट स्पीकर, व्हाटएवर इट इज। मैं बहुत बड़ा ग्रेट स्पीकर हूं, पिताजी के आगे नहीं स्पीच निकलती मेरी भाई, आई कांट, राइट? सो दैट, ये अधिकार है उनका, उनके सामने मैं खड़ा हूं तो वो उनका अधिकार है, अधिकार मैंने दे रखा है। यू कैन स्टिल स्लैप मी मैन। प्रेम का इससे ज्यादा अभिव्यक्ति का और कोई रास्ता मुझे नहीं समझ। So give your parents that right. Listen to them. Ask them small little things, yes, and see how advice starts flowing to you, and see how they take control of your lives. They will not yes, take control. They will not manipulate. But just follow, yaar. Even if it is wrong, so what? As I told you, I didn't want to study science, but he told me. I went ahead. To be very honest, I fumbled, yaar. But do I regret? उसके बाद मैंने जाके पलट के बोला नहीं, आपने मेरे को गलत बताया. No, I didn't do that. He gave me a way, and that's what it is, and that's what आपकी जिंदगी में, एक बात बताओ, सिर्फ पिताजी ही नहीं, आपके जितना तगड़े जो जिंदगी के आपके बदलाव होंगे ना, वो कड़वे अनुभव से ही होंगे, और वो लोग जो कड़वे में वही करवाएंगे आपको। yes, ठीक है ना? So they have their own contribution as well, and as many tough people as you can have in your life, please take it. वही सुधारेंगे, ठीक है ना? So that is what it is. Please, to all the youths, please go back and give this right to your parents. Suddenly start asking them. बोले यार, कल तक तो ये पूछता नहीं था, पूछती नहीं थी, पापा क्या पहनूं, मम्मी आज क्या पहनूं, अरे कल तक तो पूछती नहीं थी, मैंने बोला भी था कि बेटा ये पहन ले, सूट पहन ले, कम ऑन मैम, ये मॉडर्न जमाना है, आई वांट टू वियर अ स्कर्ट, एंड देन मम्मा ने बोलना बंद कर दिया। अब पूछो जाके, पूछो प्लीज, ऑल दी, इतना ही करो, सारे के सारे पूछो जाके, मम्मा क्या खाऊं आज, क्या पीऊं, कहाँ जाऊं, शुड आई गो और शुड आई नॉट गो, एंड वो एक बार बोले बेटा मुझे ठीक नहीं लग रहा, ओके आई विल कॉल माय फ्रेंड्स, आई एम नॉट कमिंग। कम ऑन मैन, वो तो शॉक हो जाएंगे, अरे ये क्या हो गया ये क्या हो गया। मैंने एक बार सिर्फ थोड़ा सा बोला कि देख ले बेटा, ठीक तो नहीं लग रहा है जाना, थोड़ा लेट हो जाएगा, और आपने बस उनके इतने कहने पर अपने फ्रेंड्स को फोन कर दिया, ओके यार आई एम नॉट कमिंग, दैट्स ऑल। ये अधिकार तो दो अपने पिता को, अपनी माता को, अपने दादा को, नानी को, प्लीज डू दैट, गिव देम दैट राइट, प्लीज ऑल ऑफ यू डू दिस। इतना आप जाके करो, आज आप जाके इतना ही कर लो, सारे के सारे। Yeah, thank you sir for your inspirational words sir. thank you sir. मैं गजेंद्र सिंह, एनसीसी अधिकारी, गवर्नमेंट आईटी कॉलेज भरतपुर। सर ये इसमें पूछना चाहता हूँ सर, आजकल क्या देख रहे हैं कि ये जो नई जनरेशन है वो क्या एक भटकाव की स्थिति में है। देखें उनको बौद्धिक रूप से, मानसिक रूप से इस प्रकार से भटकाया जा रहा है कि जिससे कहीं एक बिंदु पर तो आती नहीं है, देश और राष्ट्र की तो बात ही अलग है सर। समस्या यह आती है कि उनसे अब समाज निर्माण होगा तो क्या जड़ें कैसे मजबूत होंगी। तो इतना बड़ा ये क्रिटिकल पॉइंट हम देखते हैं सर अपने समाज में, आसपास जो नई जनरेशन के बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, उनको इस प्रकार से पता नहीं कहाँ से ऐसी शिक्षा मिल रही है उनको, जिससे क्या उनको राष्ट्र निर्माण की तो बहुत दूर की बात है कि अपने समाज स्तर की अपने की कोई बात, कोई ऐसी अच्छी सोच नहीं सोच सकते। तो इसमें प्लीज सर, मैं आपका प्रश्न समझ गया।
मैं आपका प्रश्न समझ गया। एक तो मैं ये कहूंगा कि मैं ये नहीं कहूंगा कि सारे के सारे बच्चे ऐसे हैं, मुझे कई बच्चे ऐसे मिलते हैं और मुझे बड़ा गर्व होता है। And now the next now what I'm going to speak is not for the youth, for all the rest of us, especially the middle-aged people and above, जो है मैं उनके लिए एक बात कहना चाहता हूं। और यूथ भी आप याद रखिए कि जब आप हमारी स्थिति में आएंगे तो इस बात को याद रखिएगा, कि हर एक समाज में, एवरी ऑर्गेनाइजेशन, wherever you go, there is always a division of 10-10-80। 10-10-80 का मतलब होता है कि चाहे आप मापदंड कोई भी ले लें, मान लीजिए ईमानदारी का मापदंड लेते हैं आप, तो आप जिस संगठन में जाएंगे तो आपके ईमानदारी का मापदंड लेंगे तो 10% आपको हार्डकोर ईमानदार मिलेंगे लोग, और 10% लोग आपको हार्डकोर बेईमान मिलेंगे, आप जिस संगठन में जाएंगे। तो हमारा एज ए लीडर का काम है, जो भी जहां पर भी है, चाहे वो एक कंपनी कमांडर है, बटालियन कमांडर है, या मुख्यमंत्री है, मंत्री है, या सीईओ है, एमडी है, कुछ भी है, हमारा सबसे बड़ा काम क्या है? क्योंकि ये दोनों जो है ना, दोनों कोण जो है 10-10% वाले, ये चेंज नहीं हो सकते, हार्डकोर है, अपने संस्कार लेके आए हैं वो। तो प्रश्न ये उठता है कि कभी कभी लगता है कि अगर ये नहीं बदल सकते तो क्या हमें ये 20-80% पे काम करना है? जी नहीं। तो हमें काम इसी 10-10 पे करना है। क्या करना है कि जो 10 गलत हैं ये नीचे जाते हुए दिखने चाहिए, और ये जो 10 सही है ये ऊपर जाते हुए दिखने चाहिए। जब हम ये करने में फेल हो जाते हैं तो ये 80% जो है ना, वो क्या देखता है कि इन दोनों कॉर्नर पर जो ये 10-10 हैं, जो अच्छे और बुरे लोग हैं, इसमें से मजे किसके हो रहे हैं, हु इज एक्चुअली ग्रोइंग। सो अगर वो देखता है कि चोर, उचक्के, भ्रष्ट लोग ही ऊपर जा रहे हैं, तो ये 80% पूरा उसी तरफ जाने लगता है, और अचानक पूरा समाज, पूरा ऑर्गेनाइजेशन का 90% चोर दिखने लगता है, मक्कार दिखने लगता है, और हम बोलते हैं कि ये क्या हो गया, चारों तरफ हाहाकार हो गए। बट एक गुड लीडर जब आता है, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन में हो, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, चाहे राष्ट्र जो भी हो, जिस भी लेवल पे है, वो इसको एड्रेस करता है, और ये 10 जो पॉजिटिव है इनको ऊपर ले जाता है, और ये जो 10 नेगेटिव है इनको सजा देना काम है, छोड़ना ये दया नहीं है। अगर ये गलत है, इनके साथ सजा होनी चाहिए, छोड़ नहीं देना, उनको तोड़ना है, उनको खंडित करना है, उनको नीचे करना है। So that is what we need. Yes, sir. We need to ensure that all such crooks in every walk of the society are brought down, dusted, destroyed, and धूल धूसरित करके इस भूमि में मिला देना है। और जो शरीफ व्यक्ति है, अच्छा व्यक्ति है, उसको ऊपर वो जाएगा, तो ये बीच का 80% उसके साथ मिल जाएगा। यही एक रास्ता है। धन्यवाद। Yes, sir. Yes, yes. I am Sambhaji sir today. सर, हमें चरित्र निर्माण कैसे करने के लिए क्या क्या करना चाहिए? चरित्र निर्माण का कोई शॉर्टकट नहीं है बेटा। जिंदगी जिए, और जो शॉर्टकट मत लीजिए जिंदगी में, जो सही रास्ता है उस पर चलते जाइए। मुश्किल होगा, कांटों से भरा होगा, आप उसको जीते जाइए, और जब कहीं से जवाब ना मिले, आप अपनी अंतरात्मा से कनेक्ट होइए, अपनी जड़ों से जरूर कनेक्ट होइए। बिकॉज सबसे पहला चरित्र के गिरने का सबसे पहला सिंबल होता है जब हम अपनी जड़ों से टूटना शुरू हो जाते हैं। तो प्लीज कनेक्ट टू योर, बी रूटेड टू योर roots, and then try and grow as per the principles, as per the cosmic law. Everybody in this world, what I'm trying to say is that look, एक बात समझिए आप कि जंगल जो होता है ना, हम लोग एज ह्यूमन बींग्स, बिकॉज हमको भगवान ने बुद्धि दी है, तो हम लोग कभी कभी घमंड में आ जाते हैं। हम सोचते हैं हम ही सर्वे सर्वा हैं। ब्रह्मांड के जो नियम है उसके हिसाब से कभी कभी हमने एक कॉइन वर्ड है, देयर इज अ प्रोवर्ब दैट वी कॉइन, जहां पर कुछ ज्यादा एनार्की होती है, हम बोलते हैं यहाँ क्या जंगल राज है क्या, ये हमारा भ्रम है, हम सोचते हैं। बट एक्चुअली स्पीकिंग, इस दुनिया में ब्रह्मांड के नियम से कुछ होता है तो सिर्फ जंगल में ही होता है। वहां पर एक एक पत्ता, एक एक घास ब्रह्मांड के नियम से चलता है। ईश्वर जो भी आप मानते हैं उसके हिसाब से चलता है। और इसीलिए आप इतिहास में जाके देख लिए, जितने भी महापुरुष हुए, चाहे वो बुद्ध हुए, नानक हुए, ऋषि हुए, मुनि हुए, जब भी जिनको भी ज्ञान प्राप्ति करनी थी, उन सब ने जाके जंगल में ही किया है, क्योंकि वहां एवरीथिंग इज इन परफेक्ट बैलेंस ऑफ द कॉस्मिक वाइब्रेशंस। हमें डर क्यों लगता है जंगल में जाने के? बिकॉज वी आर नॉट एज पर द कॉस्मिक वाइब्रेशंस। सो हम चूंकि गलत हैं, हमारे अंदर कमजोरियां, हम भय है, व्याप्त है, झूठ है, ये है, वो है, तो हम जंगल में जाते हैं, भयभीत होने लगते हैं। जो व्यक्ति परिष्कृत होता है वो वहां जाता है, वो कंफर्टेबल महसूस करता है। सो देयर इज नो शॉर्टकट। लिव योर लाइफ एज पर द कॉस्मिक लॉ, डोंट ट्राई एंड डेविएट फ्रॉम दैट, एंड गो थ्रू द हार्ड ग्राइंड। दैट्स द ओनली वे। गो थ्रू द हार्ड ग्राइंड, देयर इज नो शॉर्टकट्स। दुनिया भ्रमित करेगी, डोंट गेट misguided by that. Live your hard life. There is no shortcut.
There is no shortcut at all. I'm telling you. I'll give you one more example. I'm not a very, I'll confess in front of everyone. Even though I'm from army, but I'm not a very great runner. So when I joined the academy, शुरू में हमें सिखाया गया दौड़ो, कैसे दौड़ना सब कुछ हमें सिखा दिया. फिर भी मेरा क्या होता था कि ठीक है, हम सबकी काबिलियत बढ़ गई, तो पहले जैसा दौड़ते तो उससे हम बेहतर दौड़ने लग गए. लेकिन फिर भी मैं देखता था कि अगर 10 लड़कों को दौड़ाया गया तो मेरा नंबर 5वां 6ठा से ज्यादा ऊपर जाता नहीं था. तो मैं सोचता था यार ये कैसे है, मेरे से आगे जो ये 5 लड़के या 6 लड़के दौड़ रहे हैं, ये मेरे से बेहतर हवा में उड़ते हुए दौड़ रहे हैं वो, और मैं पूरा जोर लगाता था, नहीं दौड़ पाता था. तो मैंने एक दिन अपने उस्ताद को पूछा कि उस्ताद कुछ घुंडी है क्या, घुंडी कोई बताओ ना, कोई ट्रिक है क्या ये दौड़ने का. तो उस्ताद ने मेरे को बोला कि ठीक है तुम ऐसा करो, संडे को आना, मैं तुम्हारी अलग से क्लास लूंगा, सेपरेट बताऊंगा तुम्हें. मैंने कहा यार मेरे को कोई ट्रिक बताएगा जो किसी को नहीं बताया इसने. तो संडे को लेके गया और बोला चल मेरे साथ दौड़ना शुरू कर. दौड़ना शुरू किया, कुछ किलोमीटर तक दौड़ता रहा मैं उसके साथ. उसके बाद मेरी सांस फूलने लगी. मैंने कहा उस्ताद ट्रिक तो बताओ, मेरी सांस फूल रही है, क्या करूं. बोला अगला कदम आगे. मैंने कहा बोला अगला कदम आगे. मैंने अब बोला अगला कदम आगे. कहता भाई और कोई रास्ता नहीं है यार. We are unnecessarily looking for some trick and some shortcut beyond a point. There's no shortcut. Go through the hard grind, keep putting in the right step, next, and that's the only way. Thank you very much. Dhanyavad. Yes, sir, I'm Gaurav Shinde. Sir, my question is that how to identify our potentials? Identify your potential. Yes, sir. As I told you, first, be a good human being. That's very important. बाद में हम क्या बनते हैं नहीं बनते वो बाद की बात है. पहले आप अपना good human being है, and keep looking into yourself. And I'll tell you, भगवान आपको इशारा करेगा. भगवान आपको इशारा करेगा. आज मेरे को सब बोलते हैं what happened is after I got injured, I got shot. तो इसके बाद से मेरा कलम चलने लगा और ये मैं जो बोल रहा हूँ ये होने लगा. तो मेरे को आर्मी ने थोड़ा मौका दिया. पहले क्या 4 आदमी के सामने पार्टी में बोलता था, तो मिस में कुछ बोल दिया. डाइनिंग आउट स्पीच सबको देनी पड़ती है आर्मी में. एवरीबडी, आप अच्छे स्पीकर हो बुरे स्पीकर हो, जवानों के सामने 10 जवानों के सामने 20 जवानों के सामने दरबार सबको लेना ही पड़ता है. So then everybody started praising me. So that's the time I feel कि यार everybody I think is liking the way I speak. So I felt कि okay, this could be my potential. So it is God which will give you that. And then I started, then आर्मी ने मेरे को टीवी में भेजा, टेलीविजन में लाइव कमेंट्री करने के लिए मौका दिया, and all those things, light and sound, so documentaries and all those things. So I could have continued like that in the army, but then yes, once you realize this potential, then you got to take a tough call. Then I felt कि यार if this is my potential, I need to take a tough call. So then I took a tough call, and I thought I have had my way, whatever I could do have done in army. And then I took a tough call, and then what I'm doing is, so keep, connecting to yourself and others. There will be some frequency that will come. You have to be aligned. You have to be in the right tune to get that frequency. I'll give you another example now. FM radio सुनते हो सारे के सारे, everybody listens to FM radio, right? So FM radio में you in the transistor, if you until such time you tune it to the right frequency, you don't listen to the song, right? But till such time you don't listen to the song, it doesn't mean that there is no song. Right now भी आप जहां बैठे हो सबके चारों तरफ वो गाना है, संगीत है हवा में. वो बज क्यों नहीं रहा है? क्योंकि हमारे पास वो ट्रांजिस्टर नहीं है. ट्रांजिस्टर का सारा सर्किट सही होना चाहिए, उसकी फ्रीक्वेंसी सही होना चाहिए. The moment that is there, the song flows. Similarly, keep yourself aligned to the cosmic laws. If you are aligned, the frequency is correct, the answers are there in this cosmos. And if you are aligned, if you have the right character, no impurities in your being, then you will see it every step of your life. The answer from the cosmos will connect and it will flow through your life like a music, right? So that is what you do. Just keep, nobody else, you have to keep looking into your conscience. Thank you. Thank you. SSB. How to deal with SSB and how can we get recommended through it? Yes, sir. Okay, first of all, I'm not an SSB, not an expert, so I'll not claim to be an expert in that sense. But in an ordinary common sense, I will tell you, SSB is the best exam that in this world that anybody can go through. Whether I keep telling everyone कि तुमको भर्ती होना है, फौज में नहीं होना है, but एक बार जाके SSB जरूर देना. इससे बढ़िया कोई दुनिया में एग्जाम नहीं है. That 4 days of absolute, amazing, those 4 days, the way it goes on. So they're simply looking at, trying to find out the characters. It's a human-made scientific process. So the errors may happen, but yes, at least that is the only examination in this entire world that I know of which is trying to actually check you for your character.
There's no other organization in this. Though there's no system of a, no toughest exam in this world. जिसको भी आप कह लें, कहीं कोई भी चरित्र को टेस्ट करने का प्रयास नहीं करता. This is the only one. So if you have the right character and the right attitude, so just don't you worry about that. You will go through. And unfortunately, if you don't have it, then God help, it can't happen. There's no way. Because it's not about academics कि किसी के नंबर कम आ रहे हैं तो मैं बोलूं कि बेटा मेहनत करो और ज्ञान ले लो तो आप पास हो जाओगे. You can work on academics. कैरेक्टर का तो आपको it has to get transformed by the way you live, the way you thinking. You start thinking positive, start taking the right steps in everything that you do. Every जिंदगी में हर मोड़ पे आपको एक आसान और मुश्किल और एक सही और गलत रास्ता मिलेगा. अब सही वाला उठाते चले जाइए, आपका चरित्र परिष्कृत होता जाएगा और आप SSB आप अपने आप ही निकल जाएंगे. The most of the students who do well in the SSB actually they don't do any good. So don't worry on that, है ना. Just live your life properly, build your character, attitude nicely, be a good human being, and SSB will take care of that. Thank you. Yeah. Sir, how to stop people? They just throw garbage here and there. PM Modi also launched Swachh Bharat Abhiyan, but then also country is not ready. How to stop them? Yeah, first of all, you pick it up and throw it and tell them that this is wrong. कभी ना कभी तो शर्म आएगी ना. As I told you ना, आपने उन लोगों को देखा है जो गार्बेज फेंक रहे हैं. फैंटास्टिक, वो सही किया आपने. बट वो भी तो देखा है ना आपने जो गार्बेज सही फेंक रहे हैं. So as I told you, थोड़ी देर पहले मैं किसी और क्वेश्चन का जवाब दे रहा था, तो जो लोग गार्बेज सही फेंक रहे हैं उनका सम्मान किया क्या आपने? क्या आपकी सोसाइटी में उनका सम्मान होता है? आपके ऑर्गेनाइजेशन में उनका सम्मान होता है? हम एक चीज चाहते हैं लेकिन सम्मान करना भूल जाते हैं. एक बात बताइए, अगर हम क्रिकेट के शौकीन हैं तो कैन इट बी पॉसिबल दैट यू लव क्रिकेट एंड यू डोंट वांट टू रिस्पेक्ट द क्रिकेटर्स? I'm a film buff. मैं तो फिल्म के बगैर नहीं रह सकता. But I don't respect actors, directors. No, I don't respect them. Is it possible? हम सब सफाई की जब बात करते हैं तो हमें सफाई सबको पसंद है, तो वो सफाई वाले का सम्मान करना क्यों भूल जाते हैं? ऐसा कैसे हो सकता है कि हम एक स्वस्थ और सफाई समाज बना दें और वो सफाई वाला जो हमारा कचरा उठा रहा है सम्मान ना करें? I don't understand this. Sir, she's online. Sir. Yes, Miss Bhavika. Yes. Yeah. Sir, we encourage the people who pick up the garbage and throw on dustbin. But some people are there who does not throw. Yeah. Then you see, first make. That's what I'm telling ना. आपके जैसे जितने लोग हैं जो सही रास्ते पे चलने चाहते हैं उनका सम्मान कीजिए, उसके बाद उसका अपमान भी कीजिए. मैंने थोड़ी देर पहले 10% दोनों तरफ होते हैं. सही आदमी का सम्मान करना है, जो गलत है उसका अपमान भी करना है. लीगली विद इन द लीगल लिमिट्स के अंदर रहते हुए. Please, what all can you do? If they're in the society, can you do that? Can you all, 10 of you, go and talk to them? No, sir. Knock their door. Ma'am, you have been doing this. Sir, you have been doing this. Please, this is not right. And then as a society, can you all get together and say, okay, if this is the way as a society, we have a rule that please, you are not allowed to live in our society. Let us frame rules like this. That we are not allowed to live in our society, or you are not allowed to be part of any function of our society. You will not be extended the privileges of this society, or there will be a social boycott of this. That is what used to happen in this ancient. हमारे समाज में जो पुराने जमाने में हमारे जो पूर्वजों ने जो सामाजिक नियम बनाए थे, वो समाज में क्या करते थे? कोई गलत बंदा होता था उसका पूरा गांव बहिष्कार कर देता था. कोई गांव में उसका बोलते थे, हमारे यहाँ मैं वहां का रहने वाला हूं, वहां बोलते थे भात बंद. मतलब nobody eats with him, nobody invites him, any marriage, any function. वे लोग बॉयकॉट हो जाता था. दिस सोसाइटी यूज्ड टू बॉयकॉट दैट मैन. बोले उस घर को हमने भात बंद कर दिया है. टुडे वी आर नॉट डूइंग दैट, वी आर नॉट डूइंग दैट. सो दैट इज व्हाट वी हैव लेफ्ट एवरीथिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन. सरकार करेगी, संगठन करेगी. वी हैव लेफ्ट एवरीथिंग टू दैट. ये अंग्रेजों से हमें अभिशाप मिला एक्चुअली. पुराने जमाने में कोई कौन चोर है कौन उचक्का है, ये सामाजिक दायित्व होता था. तो गांव के लोग ही बैठते थे. कोई चोर है तो उसके साथ पंचायत बैठती थी, सजा देते थे, जो करते थे गांव से निकालते थे, जो करते थे नहीं करते थे, सब कुछ समाज का दायित्व होता था. उसके बाद अंग्रेज आए, उन्होंने हमें एक झुंझुना पकड़ाया. यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग. देयर इज अ पुलिस स्टेशन एंड देन देयर इज अ कोर्ट. लोगों ने बोला फैंटास्टिक, हम अपना काम करते हैं ना, ये हमारा दायित्व नहीं है. वो पुलिस वाला पकड़ेगा, कोर्ट वाला सजा देगा. इट्स नॉट आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी. हमने अपना पल्ला झाड़ दिया, सामाजिक दायित्व से हम विमुख हो गए और हमने उन पर छोड़ दिया. जब वो संस्थाएं जिन पर हमने भरोसा किया था अब वो चरमरा रही हैं, so we are all facing the brunt. There's no substitute, I told you. There's no substitute to being individually being aware, as a family being aware, a society being aware के अलावा कोई रास्ता नहीं है. कोई सामाजिक वैज्ञानिक आ जाए, कोई भी एक्सपर्ट आ जाए,
कोई भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपर्ट आ जाए, कोई IAS आ जाए, द बेस्ट सॉल्यूशन इज ऑलवेज गोइंग टू बी एक चेतना से भरा हुआ व्यक्ति, समाज, परिवार. दैट्स इट. थैंक यू. Okay, sir. Thank you, sir. Good morning, sir. Jai Hind. That was a powerful presentation. Actually, it is raining heavily in Kerala. लेकिन आपका वो स्पीच तो उससे ज्यादा बहुत अच्छा था. Salute again, sir. Thank you. Sir, actually, you are an army officer, and you are actually we were waiting for an army way of presentation. But actually, you are a scholar, sir. You are a scholar. I think I am a Sanskrit professor. I think a lot of points were covered by you in such a way that you are not only an army officer, you are an excellent teacher. So your message was actually, I think, as an officer and as a teacher, this message should go to all the students of the country, sir. I hope it is being recorded. I don't know whether it is recorded or not. Yes, it is recorded, sir. Yes. We have Sir, recorded your speech. So that's an excellent message, sir. Once again, I salute you. Thank you, sir. Jai Hind. Yeah. Questions I want. Compliments, yeah. If one can, I don't mind compliments, but because the time is limited, Thank you, sir. I want questions. Sir, there are so many questions. Actually, so many young people are want to interact with you, sir. Yeah. And again, we request you, sir, to do visit our campus, sir, after this lockdown period or this pandemic is over, sir. Okay. Yeah. And I wish you all the children, everybody who's all the best. Please, once again, get rooted. Just to sum it up, राष्ट्र है, राष्ट्र की जड़ें पहले जरूरी हैं, उसके बाद वही राष्ट्र चलेगा. उन जड़ों से जुड़ा हुआ राष्ट्र का निर्माण कीजिए, उसके बाद आप समाज की सोचिए, परिवार की सोचिए, और उसके बाद आप अपने आप में अंत में अपने लिए सोचिए. और सिर्फ किसी और अपने शरीर से बाहर कोई चीज, वस्तु होनी चाहिए जिसके लिए आप जीने का प्रयास करें. सिर्फ अपने लिए जीना तो फिर तो that's a very miserable way of life. And I wish you all the best. And I tell you, your generation, आप इस देश को crucial junction पे है. We are about to break that basic एक threshold है. इस threshold में काफी pressure लगेगा. So you will be the ones who will be probably breaking it. और हमारे पीढ़ी से शुरू हुआ है, शायद आपकी पीढ़ी उसको तोड़े. And इस राष्ट्र को आप विश्व गुरु बनाएंगे, और दुनिया में जहां जाएंगे आप सम्मान से घूमेंगे कि आप इस दुनिया के श्रेष्ठ राष्ट्र भारत के नागरिक हैं. और इस पूरी दुनिया को जो अंधकार है, उसका दायित्व, उस अंधकार को छांटने का, रास्ता दिखाने का दायित्व आपके पास रहेगा. पूरी दुनिया आपकी तरफ देख रही है, उम्मीद से देख रही है. सिर्फ उन लोगों को देख के हतोत्साहित मत हो जाइए जो आपको भ्रमित कर रहे हैं. बहुत सारे लोग इस दुनिया में, इस देश में चुप हैं, बोल नहीं रहे हैं, लेकिन वो इस दुनिया की तरफ, इस राष्ट्र की तरफ और आपकी तरफ देख रहे हैं, उम्मीद से, आशा से कि आप इस देश को, समाज को और इस दुनिया को बाहर निकाल कर लाएंगे. आप ये कीजिए. मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं. एक बार फिर जय हिंद, वंदे मातरम. धन्यवाद.